Hello and namaste to all. My name is Srishti Tyagi and I would like to welcome everyone to Health Quotient, a Doins Media initiative to bring awareness around various health aspects by bringing on the platform experts of the medical field. Benjamin Carson said, "A good surgeon doesn't just concentrate on technical ability, but also on the appropriateness of what they're doing." Laparoscopic surgeries perhaps offer the biggest example where technical ability of instruments meets the wisdom and knowledge of a surgeon. To throw some light on the same, along with various other topics related to laparoscopy, endoscopy, hernia, and general gastrointestinal in health, we are pleased to have Dr. B.L. Belva with us. Dr. Belva is a senior consultant and advanced laparoscopic surgeon, the first and only FACS conferred surgeon in his region of South Rajasthan. He is an FALS and FMAS fellow and an Award of Excellence awardee by the Health Minister of Rajasthan. We welcome you, sir, and hope to have a discussion that will benefit all non-medical people listening to this discussion to have a better understanding of their gut health. Before we start, could you please elaborate on your area of expertise? Good afternoon, everyone. This is Dr. B.L. Belva, consultant, advanced laparoscopic, gastrointestinal, and general surgeon. My field of expertise is general surgery. General surgery is a vast, very vast area. That includes all surgeries almost. It starts from a simple procedure to advanced procedures of the abdomen. So I am doing advanced laparoscopic surgeries of the abdomen. That includes gastrointestinal from esophagus to rectum. All GI tract I am doing by laparoscopy as possible. And the rest other things are hernia thing. That is abdominal wall surgeries. Abdominal wall reconstruction. So all the hernias included by these surgeries, mostly we are doing through the laparoscopy, but in complex cases, we have to go for the open surgery later on. So these are, these are laparoscopic surgeries of hernia. Intestinal surgeries, hernia surgeries, abdominal surgeries all are doing by laparoscopic surgeries. In advanced cities and advanced centers, there are robotics are there. People are using the robotic platforms to perform these surgeries. But at my center, still there is no robotics, and I have no expertise in robotics. So I am doing all these surgeries by the laparoscopic approach. And the other expertise field we have to see that like the emergency trauma surgeries. As a general surgeon, as a general surgeon, I have to perform emergency trauma surgeries of the abdomen and chest. Okay, I see. Yeah, usually that includes the open surgeries, but usually that includes the open surgery of the abdomen and chest. But in some cases that are very rare and very challenging to us, I have performed laparoscopic diaphragm repairs. Oh, okay. Yeah, diaphragm reports. That case was also published in the village journals. I see. So in emergency surgery, in trauma settings, we can also use our laparoscopic skills that have the better view, better skills, and better outcomes for the patient. So laparoscopy, sir, please continue. In the elaboration of my field, I am now next coming to thyroid in the next surgeries. Okay. So generally, I am doing is thyroid cases and parotid gland surgeries. Usually, these cases are 90-95% cases are benign tumors. There is no malignancy. Okay. But in few cases, generally we have seen 1, 2, or 3% patients that came us to. After the complete investigation on the workup, we got that this case is the malignancy. Okay. Then we have to see either this is operable or not. It may be breast, it may be thyroid, it may be our parotid glands and other glands of the body. If the patient is operable in condition, then we have to go for surgery. वो surgeries मैं करता हूँ. Thyroid की surgeries हुई, अपना parotid gland surgeries हुई, अपना breast surgeries हुई. Generally ये मैं include करता हूँ. As a general surgeon, I am doing these things. I understand. तो सर जैसे लैप्रोस्कोपी के बारे में आपने बात की, तो लैप्रोस्कोपी एक छोटा फाइबर ऑप्टिक इंस्ट्रूमेंट रहेगा जिसके एंड पे कनेक्टेड है कैमरा और एक छोटा सा इंसिजन मारा जाता है जितना हमें पता है.
जी जी। उसको लेस पेनफुल करने के लिए। तो इसके अगर यस आप यस। थोड़ा इलैबोरेट में बता सके कि पूरा प्रोसीजर रहता क्या है लैप्रोस्कोपी? हाँ जी, मैं उसी पे आ रहा हूँ, आई एम कमिंग। लेप्रोस्कोपी जो अब्डोमेन की सर्जरी है, उसके लिए एक टर्म है, जो दूरबीन से पेट की सर्जरीज होती है उनको हमने एक टर्म दिया है, दैट इज लेप्रोस्कोपी। ओके। अब लेप्रोस्कोपी के मल्टीपल इंसिजन्स और मल्टीपल पोर्ट्स, पेट में छेद करके, और एक छेद से कैमरा डालते हैं, दूसरे से वर्किंग इंस्ट्रूमेंट डालते हैं, तो तीसरा या चौथा पोर्ट अगर जरूरत पड़ती है तो उससे और इंस्ट्रूमेंट डाल के हम सर्जरीज परफॉर्म करते हैं। तो दीज आर कॉल्ड मल्टी पोर्ट लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज, ओके। जिसमें 3 से 4, किसी किसी में 2 छेद, किसी में 3 छेद, और किसी में 4 छेद या 5 छेद हमको पेट में करने पड़ते हैं। वहीं से सारे इंस्ट्रूमेंट्स पेट में डाल के हमको सारी सर्जरीज परफॉर्म करनी होती है। हाँ, और हाँ चाहे जी। वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सर्जरी हो, चाहे हर्निया सर्जरी हो, या हाँ। पेट की एब्डोमेन की वॉल की सारी सर्जरी जो है, मल्टीपल पोर्ट सर्जरीज। नाउ कम टू नेक्स्ट वन इज सिंगल इंसिजन लेप्रोस्कोपी। एक सिंगल इंसिजन से ही एक पोर्ट का सिस्टम, हम जो यूनिपोर्ट हम डाल के, एक सिंगल इंसिजन से एक इंसिजन डालते, वहीं से सारे इंस्ट्रूमेंट्स डाल के और सर्जरी परफॉर्म करते हैं। दैट इज कॉल्ड सिल्स, सिंगल इंसिजन लेप्रोस्कोपिक सर्जरी। तो सर ये सिंगल इंसिजन वाले किन केसेस में हम ले करते ये हैं सर? मैक्सिमम केसेज में हम यूज कर सकते हैं, जैसे अच्छा। लेप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टक्टमी हुआ, लेप्रोस्कोपिक अपेंडेक्टमी हुआ, हाँ। and some surgeries of the liver, not all surgeries, in some ओके। surgeries of the liver, some surgeries of the stomach, some surgeries of the small bowel, some surgeries of the like the spleen and pelvic surgeries, we can use SILS technique. बट सेल्स टेक्निक के साथ एक जो प्रॉब्लम है, थोड़ा सा अर्गोनॉमिक्स जो है, हमको एक ही पोर्ट से सारे इंस्ट्रूमेंट डाल के करना है, तो कहीं किसी किसी जगह पे दैट इज चैलेंजिंग। ओके। सो पर्सनली आई प्रेफर मल्टीपल पोर्ट्स। हाँ। I see. सेल्स का जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो ये है कि एक ही इंसिजन से आपके सारे पोर्ट से 3 या 4 इंस्ट्रूमेंट हम उसमें डाल सकते हैं, और उसी के थ्रू हम सर्जरी परफॉर्म कर सकते हैं। हाँ। लेकिन जब सर्जरी डिफिकल्टी की तरफ ज्यादा होता है, या फिर अर्गोनॉमिक्स इज नॉट क्वाइट इन फेवर ऑफ द सर्जन एंड पेशेंट, देन वी नीड मल्टीपल पोर्ट्स थ्रू द मल्टीपल इंसिजन ऑन मल्टीपल साइड्स ऑफ द एब्डोमेन। Then in these conditions we prefer always multiple port laparoscopic surgeries. I see. तो सर एक और कॉमन टर्म है एंडोस्कोपी का, तो या अगर आप वेरी गुड। एंडोस्कोपी क्या रहता है? या एंडोस्कोपी एक, वो दैट इज आल्सो ए कैमरा सिस्टम। हाँ जी। वो रोड लेंस सिस्टम कैमरा ही है, थ्रू द नेचुरल ओरिफिस, जैसे अब्डोमन हुआ, अब मुंह हुआ, थ्रू द ओरल कैविटी, थ्रू द एनोरेक्टल रूट, एंड थ्रू द अपना यूरिथ्रा रूट, कोई भी दूरबीन डाल के हम उस चीज को देखते हैं, उसकी या तो डायग्नोस्टिक करते हैं, या हम उसका कोई सर्जिकल प्रोसीजर करते हैं, उसका इंटरवेंशन करके किसी ट्यूमर या किसी चीज को बाहर निकालते हैं, तो दैट इज एंडोस्कोपी। अच्छा, तो एंडोस्कोपी और लैप्रोस्कोपी में मेजर डिफरेंसेस कहाँ से वो कर रहे हैं? हाँ, लेप्रोस्कोपी पेट की एब्डोमेन कैविटी है, पेरिटोनियम, हाँ। तो उसके अंदर लेप्रोस्कोप डाल के और गैस भर के, CO2 जो हमारा इनर्ट गैस है, वो हम उसमें फिल करके पूरी कैविटी को डिस्टेंड करके और फिर सर्जरी परफॉर्म करते हैं। दिस इज विद इन द पेरिटोनियम कैविटी। एंडोस्कोपी में हम सीधा ऑर्गन में डालते हैं, जैसे कि थ्रू द माउथ कैविटी वी हैव टू गो इन एसोफेगस, स्टमक एंड स्मॉल बाउल के फर्स्ट पार्ट, दैट इज ड्यूडेनम। ओके, तो दैट इज कॉल्ड अपर GI एंडोस्कोपी। अच्छा। या और उसके बाद लोअर GI एंडोस्कोपी, लोअर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट एंडोस्कोपी, दैट इज वी हैव टू गो थ्रू द एनोरेक्टल, through the NS to the rectum to the colon, ascending colon, then transverse colon, then descending colon and cecum, और हम जाते हैं सीकम और स्मॉल बाउल का जंक्शन होता है, इलियोसिकल जंक्शन, ओके, वहां तक हम उस चीज को देख पाते हैं थोड़ा डायग्नोस्टिक। अगर कोई ट्यूमर है, कोई फॉरेन बॉडी है, या कोई पोलिप है, अगर हमको वहां से निकालना होता है, तो वी कैन यूज इंस्ट्रूमेंट्स एंड वी कैन रिट्राइव और वी कैन एक्सरसाइज दैट। दैट इज ए इंटरवेंशनल थिंग ऑफ एंडोस्कोपी। ओके, नाउ कम टू अदर फॉर्म्स ऑफ एंडोस्कोपी, जैसे कि पेशाब के रास्ते से हमने दूरबीन डाल के पेशाब की थैली या पेशाब की नली की जांच करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड यूरिथ्रोस्कोपी, सिस्टोस्कोपी। जैसे पेशाब की नली, हमारी यूरिथ्रा की हम जांच करते हैं, दैट इज कॉल्ड यूरिथ्रोस्कोपी।
पेशाब की थैली की हम जांच करते हैं तो दैट इज कॉल्ड सिस्टोस्कोपी। और पेशाब की थैली से हम अगर यूरेटर्स में जाते हैं, किडनी तक जाते हैं, तो दैट इज कॉल्ड यूरेट्रोस्कोपी। तो ये हमारे इस एंडोस्कोपी के प्रकार हो गए। एंडोस्कोपी के प्रकार हो गए एक तरह से। और एंडोस्कोपी में एक रिसेंट चीज जो इंटरवेंशनल अपने प्लमोलॉजिस्ट कर रहे हैं या फिर कुछ सर्जन्स भी करते हैं, एनेस्थेसियोलॉजिस्ट भी करते हैं, दैट इज कॉल्ड ब्रोंकोस्कोपी। अच्छा। ब्रोंकोस्कोपी, उसमें भी थ्रू द माउथ हम ट्रेकिया में जाते हैं, थ्रू द माउथ थ्रोट में जाते हैं, थ्रोट से लैरिंग्स, लैरिंग्स से ट्रेकिया, ट्रेकिया से ब्रोंकाई। तो वो सारी चीज, कोई फॉरेन बॉडी चला गया, कोई सिक्का चला गया, या कोई बीज चला गया, बच्चे ने कुछ निकल लिया हो, तो थ्रू द एंडोस्कोपी वी कैन रिट्राइव that thing. I see. Yeah. Okay. तो इंडिया में प्रेवलेंस नहीं है अभी क्या ब्रोंकोस्कोपी का, जिसके बारे में आपने बात नहीं, ब्रोंकोस्कोपी का प्रेवलेंस नॉट ऑन स्मॉल सेंटर्स, बड़े बड़े सेंटर्स में जो लोग कर रहे हैं वहीं पे अवेलेबल है। कुछ कुछ मेडिकल कॉलेजेस में है, कुछ टर्सरी केयर कॉर्पोरेट हॉस्पिटल से वहां पे अवेलेबल है। ओके। हाँ, बट दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि ब्रोंकोस्कोपी बहुत जरूरी है आजकल। और जो बच्चे निकल जाते हैं, बड़ा भी किसी चीज को निकल लिया, अपने रेस्पिरेटरी ट्रैक में चला गया, तो वहां से रिट्राइव करने में उसके बहुत इजी है, बहुत आसान है। जस्ट ए 20-15 मिनट्स प्रोसीजर। लेकिन सर इन केसेस में सक्सेस रेट क्या रहता है? क्योंकि अगर किसी की सांस की नली में कोई चीज अटक जाती है तो बहुत जल्दी उसको निकालना होता है, टाइम बिकम्स अ बिग फैक्टर। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं, सक्सेस रेट बहुत अच्छा है। It depends on the expertise of the operating surgeon or pulmonologist or interventional anesthesiologist वगैरह। तो उन पे डिपेंड करता है कि उनका एक्सपर्टाइज कितना अच्छा है। अगर they are expert, they can do within the minutes, within minutes में 5 मिनट का काम करके पेशेंट को बचा सकते हैं। ओके, आई सी। या तो इन जनरल लैप्रोस्कोपी और एंडोस्कोपी इसके क्या सक्सेस रेट्स होते हैं और क्या चीजें हैं सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से जिसको ध्यान में रखना चाहिए? सक्सेस रेट मैडम, जो सक्सेस रेट है एक्चुअली नॉट ओनली डिपेंड्स ऑन सर्जन, इट डिपेंड्स ऑन द पेशेंट एज वेल एंड डिजीज। ओके। किसी भी चीज की सक्सेस रेट 100% नहीं होती है। सही बात है। बट आफ्टर कमिंग द लेप्रोस्कोपी एंड ऑल दीज मिनिमल इन्वेजिव प्रोसीजर्स एंड टेक्निक्स, हर बीमारी का जो ट्रीटमेंट करने का जो उसका सक्सेस रेट है, आउटकम्स, वो बहुत बहुत अच्छा बढ़ा है। और जैसे कि किसी प्रोसीजर को ले लीजिए आप, जैसे कि एक लेप्रोस्कोपी कोलेसिस्टेक्टमी, गोल ब्लैडर निकालने के लिए लेप्रोस्कोपी इज द गोल्ड स्टैंडर्ड प्रोसीजर। हाँ जी। ओके, जब तक गोल ब्लैडर का डिजीज एडवांस नहीं हो गया है और बहुत खराब नहीं हो गया है, तब तक वो अगर कोई गोल ब्लैडर सर्जरी करने में एक्सपर्ट है तो ऑलमोस्ट 99% सक्सेस रेट है। या वो बहुत अच्छा सर्जरी है, बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग नहीं है, 30-40 मिनट की सर्जरी है। नेक्स्ट डे पेशेंट को हम डिस्चार्ज कर देते, घर चला जाता है। जनरली कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती है। अगर डिजीज खराब हो गई, गोल ब्लैडर में बहुत पस पड़ गया है, बहुत इन्फेक्शन हो गया है, बहुत ज्यादा वहां पे आंत वगैरह चिपक गई है, तो उस कंडीशंस में कॉम्प्लिकेशंस ऑफ सर्जरी वो थोड़ी बढ़ जाती है। ओके। या तो क्या उन कॉम्प्लिकेशंस को भी लैप्रोस्कोपी के थ्रू ही करा जा सकता है या फिर नहीं, वो उसके लिए वो भी डिपेंड करता है आपका कितना एक्सपर्टाइज है। If you have enough experience in such type of the cases to handle the complications, you can do through the laparoscopy at that time. अगर आपसे वो लेप्रोस्कोपिकली समझ नहीं रहा है तो देन वी हैव टू ओपन। या फिर उस प्रोसीजर को ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो गया तो फिर ओपन कई बार करना पड़ता है। यूजुअली वी ट्राई कि हम लेप्रोस्कोपी सारी चीजें उसको कंट्रोल कर लें और सारी कॉम्प्लिकेशन जो भी हुआ है, वेरी रेयर, लेकिन जिससे भी होता है तो उसको कॉम्प्लिकेट चीज को ठीक करके और बाहर आ जाए। ओके। तो यूजुअली लेप्रोस्कोपी एंडोस्कोपी में रिकवरी रेट इज ओनली गोइंग टू बी 1 to 2 days। या वेरी गुड, वेरी गुड रिकवरी रेट। पेशेंट को बहुत कम पेन होता है, हॉस्पिटल स्टे बहुत कम होता है। ठीक है, पेशेंट का जो बेड रिडन टाइम है बहुत कम हो जाता है, बहुत जल्दी रिकवरी होती है, बहुत जल्दी अपने काम पे जा सकता है। बहुत बड़े बड़े इंसिजन्स जो पेट पे ओपन सर्जरीज के होते हैं वो नहीं हो सकते, वो नहीं होते हैं। और लेप्रोस्कोपिक का जो सबसे बड़ा एडवांटेज फॉर दिस सर्जन इज दैट कि लेप्रोस्कोप जो कैमरा है वो बहुत पेट के अंदर की चीजों को बहुत अच्छे से देख लेता है। यू नो, आप अपने सिंपल आंखों से नहीं देख सकते, तो कैमरा उसको मैग्नीफाई करके बहुत अच्छे से दिखाता है। तो दैट इज क्वाइट इजी फॉर ए सर्जन टू परफॉर्म ए सर्जरी ऑन दैट पर्टिकुलर डिफिकल्ट एरिया। सर अगर एंडोस्कोपी के फ्यूचर के बारे में बात करें, जैसे हम देखते रहते हैं तो आजकल इनहेल
करने, इनहेल नहीं, थोड़ी swallow करने वाले कैमरास भी आ रहे हैं एंडोस्कोपी का। नेक्स्ट वो बताते हैं कि पिल टाइप यस, दैट इज कैप्सूल एंडोस्कोपी। हाँ जी। उसमें पेशेंट को स्वेलो करने के लिए दे दिया जाता है, और जैसे जैसे वो कैप्सूल जो कैमरा है वो मूव करता है पूरे बाउल में, हाँ हाँ हाँ। तो हर जगह वो अपने फोटोग्राफ्स और पिक्चर्स लेता रहता है। ओके। and that photographs transfer to the outer devices, PC पे डिवाइस अपना ट्रांसफर हो गया, वहां से we can take easily कि what is happening in the which part of the intestine, what is there, is there any abnormality or not. तो कैप्सूल एंडोस्कोपी इज क्वाइट कॉमन, ये भी बड़े बड़े सेंटर्स में हो रहा है, हर जगह नहीं होता है। अच्छा। या बड़े बड़े सेंटर से एक्सपर्ट लोग हैं वो कर रहे हैं, वहां पे होता है। थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से और उस चीज के अवेलेबिलिटी के हिसाब से। कैप्सूल एंडोस्कोपी ऑल्सो वेस्टर्न कल्चर में बहुत ज्यादा, वेस्टर्न कंट्रीज में हो रहा है काफी, इंडिया में अभी थोड़ा सा कम है। तो सर इसका क्या कारण है? इज इट बिकॉज इट्स कॉस्टलियर या फिर कोई और रीजन है? नहीं मैडम, कॉम्प्लायंस है और करने वाले लोगों का है, और कॉस्टली है। सबसे मेन चीज है कि वो कॉस्टली पड़ता है, लैक्स ऑफ रुपीज उसमें खर्चा होता है। तो पेशेंट की अफोर्डेबिलिटी इंडिया में बहुत मैटर करती है। या स्टिल आई एम फेसिंग इन माय रीजन कि लॉट ऑफ पेशेंट्स केम विद द सर्जरी फॉर द सर्जरी लेप्रोस्कोपिक, बट दे कांट अफोर्ड, so sometimes we have to go for the open procedures because of their affordability. Correct. Doctor, you were also talking about hernia. Now hernia is another common terminology that we hear. बहुत ज्यादा awareness या idea नहीं रहता है लोगों के पास. We know typically it involves stomach and intestine, but can you please shed a little bit of more light कि exactly hernia क्या है, उसका diagnosis और prognosis किस प्रकार से होता है? Yes sir, बिल्कुल। hernia जो अपना पेट एब्डोमिनल कैविटी जो है, वो पेट की दीवार होती है, उसके अंदर एब्डोमेन होता है सारा और पूरी कैविटी को कवर करता है, दैट इज एब्डोमिनल वॉल। तो एब्डोमिनल वॉल में कहीं पे कोई डिफेक्ट पैदा हो जाए मसल्स के बीच में, वहां से वीकनेस हो गई, मसल स्प्लिट हो गई, स्प्लिट हो गया, डिफेक्ट हो गया, और डिफेक्ट के थ्रू एब्डोमिनल कंटेंट बाहर की तरफ प्रोट्रूड और बल्ज होने लगे, निकलने लगे, तो यही हर्निया एक सिंपल भाषा में हम कहें। अच्छा, ठीक है। अब हर्निया के दो रीजन है, आइदर कंजेनाइटल जो जन्मजात होता है, एंड सेकेंड इज एक्वायर्ड जो कि बाद में होता है। ओके, तो सबसे पहले जन्मजात पे आते हैं। यू नो, इन बाय बर्थ पेशेंट बच्चा है, उसको दैट पेशेंट हैविंग द इंग्वाइनल वीकनेस, देयर इज डिफेक्ट इन इंग्वाइनल रीजन्स। वो कौन से रीजन होता है डॉक्टर? इंग्वाइनल ग्रोइन एरिया। ओके। या अपने ग्रोइन एरिया में जहां से टेस्टिस, जब बच्चे का डेवलपमेंट होता है तो टेस्टिस एब्डोमेन में होते हैं। अच्छा। और थ्रू ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ द बेबी, वो जब बच्चा गर्भ में होता है तो टेस्टिस एब्डोमेन से उस इंग्वाइनल कैनाल से होते हुए थ्रू द दैट इंग्वाइनल ओपनिंग वो आते हैं अपने स्क्रोटम में। ठीक है। तो किसी बच्चों में जो इंग्वाइनल कैनाल की जो ओपनिंग्स हैं वो पेटेंट रह जाती है, मतलब ओपन ही रह जाती है, वो क्लोज नहीं होती है। दैट इज कनेक्टेड टू एब्डोमिनल वॉल, सॉरी एब्डोमिनल कैविटी, नॉट वॉल। तो वो कंजेनाइटल ग्रोइन हर्निया हो गया। तो उसमें बच्चे के पेट में से आंत या ओमेंटम वगैरह आके नीचे और स्क्रोटम से चिकरा जाता है। कई बार ग्रोइन में बच्चे को स्वेलिंग होता है, ग्रोइन के अंदर वो स्वेलिंग फील होता है, दिखता है, तो वो कंजेनाइटल ग्रोइन हर्निया होगा। कुछ बच्चों में जो अम्बलाइकल रीजन है, जहां से बच्चा अपने माँ के गर्भ से जुड़ा होता है थ्रू द अम्बलाइकल कॉर्ड, यहाँ भी एक डिफेक्ट होता है, अम्बलाइकल रिंग होती है, वो क्लोज नहीं होती है। अगर वो क्लोज नहीं होती है तो दैट इज कॉल्ड कंजेनाइटल अम्बलाइकल हर्निया। जनरली देखने को मिलता है कि बच्चे की नाभि फूली हुई है ऑपरेशन पैदा होने टाइम, और धीरे धीरे साल 6 महीने में वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। वो अपने आप रिकवरी करके और रिंग जो है अम्बलाइकस रिंग वो क्लोज हो जाता है। अगर किसी बच्चे में अम्बलाइकल रिंग हुआ या इंग्वाइनल रिंग हुआ, वो साल 2 साल 3 साल में क्लोज नहीं होता है, तो फिर वो दैट कन्वर्ट्स इनटू हर्निया। एक्चुअली हर्निया ही होता है, लेकिन बाद में फिर वी हैव टू गो फॉर द सर्जरी फॉर द क्लोजर। ओके, फिर वो स्पॉन्टेनियस क्लोजर नहीं होता है। तो क्या सारे हर्निया स्पॉन्टेनियसली क्लोज हो सकते हैं? नो मैडम, ओनली कंजेनाइटल थिंग्स। ओनली कंजेनाइटल। एक्वायर्ड हर्निया कभी भी दवाई से, किसी मेडिसिन से, किसी एक्सरसाइज से, किसी योग से और किसी भी चीज से ठीक नहीं हो सकता है। ओनली दे नीड सर्जरी। फर्स्ट एंड लास्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन इज अ सर्जरी।
आई सी। लेकिन किसी को भी पता कैसे चलेगा, क्योंकि हर्निया विल लुक वेरी सिमिलर टू मे बी एन एक्यूमुलेशन ऑफ टिश्यूज, जैसे थोड़ी सी या स्किन आपकी हो यस जाती है हाँ और का बिनाइन माना जाता है उसको, तो हाँ हाँ बिल्कुल, वो कैसे, दैट इज कॉल्ड क्लिनिकल क्लिनिकल फीचर्स। उसके क्लिनिकल फीचर क्या है हाँ जी, कि क्लिनिकल जैसे फीचर। हाँ किसी भी एब्डोमिनल वॉल पे या ग्रोइन वॉल पे या ग्रोइन साइड में या पीछे की तरफ कहीं पे कोई स्वेलिंग होती है, हम्म। सबसे पहले हर्निया का पहला फीचर है पेन एंड स्वेलिंग। या हम्म तो उसको उस जगह पे दर्द होगा या वहाँ पे स्वेलिंग होगी। कई हम्म बार हर्निया छोटा होता है जिसमें कोई चीज फंस गई, वो बाहर से दिखता नहीं है, लेकिन उस जगह पे पेन होता है। उसको बोला कि हम्म मुझे यहाँ पे दर्द हो रहा है, उठते बैठते दर्द हो रहा है, या खांस रहा हूँ तब दर्द हो रहा है, या हम्म फिर और कोई काम कर रहा हूँ, वेट लिफ्ट कर रहा हूँ तब दर्द होता है, तो पेशेंट जनरली ये कंप्लेंट करता है। तो हम्म ऐसी कंडीशन में सबसे पहले हमको पेशेंट को अपने किसी फिजिशियन या सर्जन के पास जाके दिखाना चाहिए, और फिजिकल एग्जामिनेशन करके हमको देखना है इंग्वाइनल रीजन है या एब्डोमन रीजन है या अपना फ्लैंक रीजन है या और हम्म कोई रीजन है जहाँ पे वो स्वेलिंग कैसा है, वो स्वेलिंग कंप्रेसिबल है या नहीं है, वो रिड्यूसिबल हो है या नहीं है, वो हम्म। टेंडरनेस उसमें है या नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग इज क्लिनिकल एग्जामिनेशन। ओके। ओके, कुछ पेशेंट कहते हैं कि मैं जब सर खांसी करता हूँ तो मुझे स्वेलिंग बनती है फिर खत्म हो जाती है। हम्म तो इसका रीजन क्या है कि जब खांसी करते हैं तो अब्डोमेन कैविटी का प्रेशर इंक्रीज होता है, हम्म। और जब प्रेशर इंक्रीज होता है तो कंटेंट थ्रू द दैट डिफेक्ट, हर्निया डिफेक्ट कम्स आउट। ओके, हाँ हाँ तो जैसे डिफेक्ट खुल जाएगा, खुलता तो रहता है लेकिन प्रेशर बढ़ेगा, उसको थ्रू कंटेंट बाहर आता है तो हर्निया का बल्ज दिखता है। हाँ। तो ये भी एक मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन लोगों का यही होता है कि खांस कर रहा हूँ, स्वेलिंग आ रही है, दर्द हो रहा है, और ये सारी चीजें हैं। ठीक है, वो डॉक्टर, क्या इसका फिर फैक्टर्स क्या हैं जिस पे डिपेंडेंट रहेगा? क्या हाँ एज की हाँ, वजह से, नहीं नहीं या नहीं, इसमें मेन? इसमें क्या, या आई एम गोटिंग गेटिंग, इसमें जो फैक्टर्स है, सबसे पहला कंजेनाइटल हो गया कि हाँ जन्मजात जी। हो सकता है, और दूसरा हाँ चीज जी। एक्वायर्ड। एक्वायर्ड हम्म, एक्वायर्ड जो हर्निया होता है जनरली 40 की एज के बाद होता ओके। है ना, या तो बच्चे में होगा, साल डेढ़ साल के बच्चे में होता है, या फिर हम्म 40 साल के बाद होता है। अब 40 साल के बाद के आदमी या महिला या पुरुष जो है उसमें हर्निया होने के जो रीजन है, यंग एज में भी हो सकता है, हम्म यंग एज में बहुत हर्निया होते हैं, लेकिन हम्म यूजुअली देखा जाता है 40s के बाद में। हम्म उसके जो रीजन है कि अब्डोमिनल वॉल में वीकनेस आ गई। हम्म वीकनेस आने का रीजन हो सकता है कि उसका कोई जन्मजात कोई ऐसी बीमारी हो मांसपेशियों की जिसकी वजह से उसकी मसल्स वीक हो गई हो। ठीक है, हम्म। दूसरा कि पेशेंट को क्रोनिक कफ हो, अच्छा। ओके। लंबा टाइम से खांसी रहता है, पेशेंट खांसता रहता है, अब्डोमेन का प्रेशर बढ़ता रहता है, तो कहीं पे वीकनेस बन के वहां से फिर ये जो पॉसिबल एरियाज है हर्निया के, वहां पे वीकनेस बन के वहां से बल्जिंग शुरू हो जाती है। हम्म तो ये बहुत बड़ा रीजन है। अब कफ होने की रीजन क्या, उसको बीमारी हो सकती है, हम्म क्रोनिक स्मोकर्स जो होते हैं उनको हो सकता है, हम्म। किन्हीं को लंग की कोई बीमारी है, फेफड़ों की कोई बीमारी है, उन लोगों को हो सकता है। ओके। ओके, और कुछ लोग जब 40s की एज के बाद प्रोस्टेट बनता है, प्रोस्टेट बढ़ना शुरू हो जाता है, प्रोस्टेट एवरी मेल हैव द प्रोस्टेट, जब हाँ। 40 और 50 एज के बाद उसमें प्रोस्टेट बढ़ना शुरू हो जाता है तो पेशेंट को यूरिन करने टाइम वो जोर लगाता है। हम्म। तो उस कंडीशन में एब्डोमेन वॉल का प्रेशर बढ़ता है, एब्डोमेन हम्म। कैविटी का, तो उसमें भी कई बार हर्निया डेवलप होने के चांस रहते हैं। तो मतलब मेल में ये ज्यादा प्रेवलेंट है एज अपोज टू फीमेल? या मेल में ज्यादा होता है हमेशा। कोई और ओवर ईटिंग का फैक्टर या कोई डेफिशिएंसी ये भी कर? बिल्कुल बिल्कुल, ओबेसिटी इज द वन ऑफ द नॉन कॉज ऑफ फॉर हर्निया। ओके। मोटापा एक क्या अपने आप में बहुत बड़ा एक फैक्टर है, एक रीजन है हर्निया हाँ का। मोटापे में कुछ लोगों में बहुत कब्जी होती है, बहुत कॉन्स्टिपेशन होता है, हाँ। तो जब वो स्टूल पास करने जाते हैं तो दे हैव टू स्ट्रेन, वो बहुत स्ट्रेनिंग करते हैं, बहुत जोर लगाते हैं, तो दैट आल्सो इंक्रीजेस द एब्डोमिनल वॉल, सॉरी एब्डोमिनल कैविटी प्रेशर। तो उस हम्म। कंडीशन में भी वॉल में बल्ज होना शुरू हो जाता है, लेटर ऑन पेशेंट डेवलप्स हर्निया। ओके। और फिर हर्निया के ट्रीटमेंट के लिए देयर इज गोइंग टू बी सर्जरी व्हिच कैन बी ईदर लैप्रोस्कोपिक और एंडोस्कोपिक और ओपन टाइप सर्जरी? ओपन है, ओपन, यस यस यस। हाँ। हर्निया हर्निया से बचने के जो तरीके हैं, एक बार सर्जरी से पहले हम बचने के प्रिवेंटिव मेजर्स पे आते हैं। हाँ बिल्कुल। अगर पेशेंट को ठीक है कि अच्छा खा रहा है, अच्छी एक्सरसाइज कर रहा है, बहुत ज्यादा वेट लिफ्टिंग नहीं कर रहा है, कोई एडिक्शन नहीं है, उसको स्मोकिंग नहीं है, अल्कोहल का एडिक्शन नहीं है, लाइफ ठीक है, तो दे आर लेस प्रिवलेंट फॉर द हर्नियाज। ओके, तो हर्निया से बचने के लिए सबसे पहली चीज है कि अपना फिजिकल एक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए। ओके। ओबेसिटी
जो है उसको आपको बचाना है, आपको ओबेस होने से बचाना है। स्मोकिंग नहीं करना है। Smoking one of the factor for the such type of the respiratory disease and abdominal disease and all these hernias. Smoking करते हैं, खांसी होती है, क्रोनिक खांसी रहेगी, धीरे धीरे वीकनेस होके वॉल में और हर्निया बन जाता है। और पेशेंट को बहुत ही स्ट्रेनस एक्टिविटी नहीं करनी है। हर्निया से बचने के तरीके, बहुत ज्यादा वजन, एकदम से वजन लिफ्टिंग नहीं करना है। अगर वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं तो एब्डोमिनल वॉल के लिए जो बेल्ट्स आते हैं, एब्डोमिनल बेल्ट्स आते हैं, इंग्वाइन लीजन के लिए बेल्ट्स आते हैं, और इस सपोर्ट्स आते हैं जो जिम में सपोर्ट्स पहनते हैं, वो सब यूज करें। वॉल को बाहर से सपोर्ट दें वेट लिफ्टिंग के टाइम, ताकि वॉल में अचानक से रप्चर होने का या वीकनेस होने का जो रिस्क है वो थोड़ा कम हो जाए। तो क्या इस एब्डोमिनल वॉल के आसपास के मसल्स को ज्यादा स्ट्रेंथन करने के लिए भी कोई स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस होती हैं टारगेटेड जिस पे फोकस करना चाहिए? नहीं, ऑल जो एब्डोमेन की जो सिंपल एक्सरसाइजेज है, जो एब्स के लिए हम एक्सरसाइजेज करते हैं, वो एब्स की एक्सरसाइज दैट इज सफिशिएंट फॉर एब्डोमिनल वॉल मसल्स स्ट्रेंथनिंग। ओके, वो बहुत है। लेकिन अगर बहुत ही स्ट्रेनस आप में बहुत ज्यादा वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं, हमारा रोज का काम है कि बहुत ज्यादा वजन उठा रहे हैं या बहुत जबरदस्त जिम में जाके बहुत ज्यादा वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में हर्निया डेवलप होने के चांस ज्यादा होते हैं। बहुत पेशेंट्स आते भी हैं कि सर मैं जिम करते करते अचानक से मेरे को यहाँ से स्वेलिंग दिखना शुरू हुआ, 1 महीना हो गया, अभी ठीक ही नहीं हो रही है। तो एक्चुअली दैट इज हर्निया, दिस डेवलप बिकॉज ऑफ द स्ट्रेनस एक्टिविटी। तो खासकर इन चीजों का बहुत ध्यान रखना इसमें जरूरी है। ओके डॉक्टर, ठीक है डॉक्टर। इफ यू फोकस ऑन द कॉमन गैस्ट्रोइंटेस्टिनल प्रॉब्लम्स, तो वो कौन सी कॉमन प्रॉब्लम्स होती हैं जो आपने देखी हैं, और उनमें क्या कॉजेज रहते हैं और सिम्टम्स रहते हैं उनके? मैडम एक बार हर्निया का मैं ट्रीटमेंट थोड़ा सा 2 मिनट के लिए, सर्जरी है ना, उसके बाद जीआई ट्रैक्ट पे, गैस्ट्रोइंटेस्टाइन पे आता है। तो हर्निया जो है, हर्निया पहले जो अपना ट्रेडिशनल चला आ रहा था, सारा ओपन सर्जरी होती थी। हाँ जी। कहीं भी हर्निया, वहां पे चीरा लगाया, उसको रिपेयर कर दिया और ठीक। उसके बाद थोड़ा शिफ्ट हुआ मैश पे, जाली लगाने पे। अच्छा, जाली, वो जैसे ग्रोइन हर्निया है या फिर एब्डोमेन का हर्निया है, तो वहां से चीरा लगाया, ओपन किया, उसको रिपेयर किया और जाली लगा के, मैश लगा के उसको बंद कर दिया। ओके, ठीक है। नाउ वी आर इन द एरा ऑफ द मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी। Okay, minimal invasive that includes laparoscopic, endoscopic, robotics and all. Okay, so now mostly we are doing all the hernias through the laparoscopy. और लेप्रोस्कोपी सर्जरी जो पेट में दूरबीन डाल के या पेट की दीवार के अंदर दूरबीन डाल के, 2 तरह से एब्डोमेन के सर्जरी, हर्निया की सर्जरी हम करते हैं। एक में पूरा पेट के अंदर दूरबीन डाल के करते हैं, हवा भर के पेट के अंदर, ट्रांस एब्डोमिनल। उसके अंदर पेट के अंदर से ही मैश लगाते हैं। वो मैश जो जाली होती है, उसकी अलग अलग वेराइटी जो होती है, अलग अलग मटेरियल्स होते हैं, वो थोड़ा डिटेल्ड है, ठीक है। और एक टेक्निक है उसमें, पेट की दीवार, जो पेट की दीवार अपनी वॉल, एब्डोमेन की वॉल, उसके अंदर ही जाते हैं, एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर, नॉट इनसाइड द एब्डोमेन कैविटी, वी आर आउटसाइड द एब्डोमेन कैविटी विद इन एब्डोमिनल वॉल, दैट इज कॉल्ड टोटल एक्स्ट्रा पेरिटोनियल, टीईपी। तो पेट की दीवार से ही दूरबीन डाल के वहीं से उसको सेपरेट करके हर्निया वाले सेगमेंट को पेट में वापस डाल के, और फिर वहां जाली लगा के मैश रिपेयर करते हैं। ओके, तो ये 2 टेक्निक्स जो हर्निया की है, पूरी दुनिया अभी यही कर रही है, चाहे वो रोबोटिक्स से करें, चाहे वो लेप्रोस्कोपिक से करें। तो जाली जो होती है, जिस मैश की आप बात कर रहे हैं, या क्या किसी अपनी बॉडी के टिश्यू से डेवलप्ड एक मास होता है? नहीं, दैट इज सिंथेटिक मैडम। सिंथेटिक रहता है, सिंथेटिक, दैट इज प्रोलिन और वाइक्रिल, 2 तरह के कंपोनेंट्स है उसमें। एक प्रोलिन होता है सिंपली, जो कि कभी गलता नहीं है, बॉडी में एक बार डाल दिया पूरी लाइफ टाइम वही रहेगा। अच्छा। और कुछ जब हम पेट के अंदर से हर्निया की सर्जरीज करते हैं, पेट की दीवार पे लगाते हैं, तो उसमें हाइब्रिड मैश यूज करते हैं। उसमें एक तरफ पे प्रोलिन होता है जो गलने वाला नहीं होता है, और दीवार एक तरफ पे वाइक्रिल होता है जो थोड़ा गलने वाला कंपोनेंट होता है उसका, दैट इज हाइब्रिड मैश। तो ऑल दीज आर प्रोस्थेटिक। और इनका पर्पस क्या रहता है? इनका पर्पस है कि वो हर्निया, अपने एब्डोमिनल वॉल को स्ट्रेंथनिंग करना। अच्छा, उसको एब्डोमिनल वॉल को स्ट्रेंथ देता है, उसकी प्लास्टर करता है, ताकि वापस से हर्निया डेवलप ना हो। यस। Okay, that's very interesting to know more about hernia, doctor. Definitely एक awareness बनी। और अगर अब हम GI प्रॉब्लम्स के बारे में आए, जो हमारी जनरल गैस्ट्रोइंटेस्टिनल प्रॉब्लम्स होती हैं, तो सबसे ज्यादा कॉमन कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं, उनके सिम्टम्स और कॉजेस क्या रहते हैं?
हाँ मैडम, सबसे जो डेली टू डेली एवरीडे ओपीडी में जो पेशेंट्स आते हैं, मैं अपना प्रैक्टिकल बात करता हूँ, नॉट बुकिस। ओके, हाँ जी। मैं डेली जो कर रहा हूँ उस चीज में बात करता हूँ। हमारा जीआई ट्रैक्ट माउथ से लेके हाँ जी। और एनल ओपनिंग तक, दैट इज कॉल्ड जीआई ट्रैक्ट। हाँ जी। ओके, तो जनरली जो पेशेंट प्रेजेंट होते हैं वो रहता है कि सर मुझे ना गैस बहुत बन रही है, हम्म। मुझे एसिडिटी बहुत बन रही है। हम्म। मैक्सिमम पेशेंट्स ये होते हैं। ठीक है, हम्म। कुछ पेशेंट बोलते हैं सर मेरे पेट में गुड़गुड़ गुड़गुड़ हो रहा है, हाँ जी। थोड़ा थोड़ा मुझे दर्द होता है, थोड़ा थोड़ा गुड़गुड़ हो रहा है, और मैं सही से फ्रेश नहीं हो पाता हूँ। कई हम्म। बार मुझे लूज मोशन हो जाते हैं, कई बार मुझे हार्ड स्टूल आता है। कुछ हम्म। पेशेंट बोलते हैं कि सर मुझे बहुत ही एकदम कब्जी रहती है, 2 दिन में फ्रेश होता हूँ, कई बार 3 दिन में फ्रेश होता हूँ। हम्म। तो ये सारे उनके एक वेग से सिम्टम्स होते हैं पूरे पेट के। ठीक है, ओके। पेट में प्रॉब्लम होने के। अब सबसे पहले अपन आते हैं एसिडिटी पे। हाँ जी। पेशेंट बोलता है कि सर मुझे बहुत एसिडिटी हो रही है, मेरे ऐसे गले में खट्टी खट्टी डकारें आ रही है। हम्म। तो दैट इज कॉल्ड गेस्टाइटिस। ओके। एसिडिटी जो बनती है उनको गेस्टाइटिस बोलते हैं। स्टोमक में ना एसिड ज्यादा बन के एकदम इन्फ्लामेशन हो जाता है, दैट इज गेस्टाइटिस। और हम्म। जब वो रिफ्लेक्स होके थ्रू द इसोफेगस गले में आने लगता है, हाँ। तो उसको हम बोलते हैं गैस्ट्रो इसोफिजियल रिफ्लेक्स डिजीज, हम्म। जीईआरडी। हम्म। दोनों चीजें इंटरकनेक्टेड है। आई सी। अब इसके रीजन बहुत सारे हो सकते हैं, पेशेंट का खाना हो सकता है, बहुत सारी चीजें हैं। पेशेंट की एंजाइटी हो सकती है, स्ट्रेस हो सकता है, स्पाइसी फूड हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है, स्मोकिंग हो सकता है, जंक फूड्स हो सकते हैं, लॉट ऑफ प्रोसेस्ड फूड्स हो सकते हैं। ये सब चीजें गेस्टाइटिस करवाती है। स्टोमक का जो एसिड पीएच है वो ज्यादा बनाता है, एसिड ज्यादा बनेगा तो पीएच और कम होता जाएगा। हम्म। बोला बहुत एसिडिटी हो रही है, मतलब उसको पेट के अंदर एसिडिटी बहुत ज्यादा बन रहा है, एसिड बहुत ज्यादा बन रहा है। वो एसिड बन के वापस रिफ्लेक्स होके थ्रू द इसोफेगस गले में आ रहा है। तो ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। ठीक तो है, क्या एसिडिटी की वजह से फिर गैस वाली जो प्रॉब्लम होती है वो या दोनों जो। कनेक्टेड है, दैट इज कनेक्टेड। बिल्कुल एसिडिटी की वजह से ये कनेक्टेड है। अब उस पे गैस वाले प्रॉब्लम पे, लोअर एब्डोमेन पे हम अभी आते हैं। दिस इज गेस्टाइटिस। ओके, जीईआरडी विद गेस्टाइटिस। अब हाँ। इस कंडीशन में क्या है कि जब एसिड सेल्स जो है हमारे स्टोमक की, जहां से HCl एसिड बनता है, वो ज्यादा एक्टिवेट हो जाती है, तो एसिड ज्यादा बनता है। और जब हाँ। एसिड ज्यादा बनता है तो पेट के अंदर अपनी स्टोमक जो है, स्टोमक और अपना इसोफेगस, उसमें कई बार छाले बनना शुरू हो जाते ओके। हैं। वो एसिड उसको धीरे 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 इरोड करता है, वहां पे छाले बनना शुरू हो जाते हैं। ओके, हम्म। और छाले बनने के बाद कई बार छाला परफोरेट फूट जाता है, परफोरेट कर जाता है, दीवार में छेद हो जाता है। ओके। वो छेद इसोफेगस के लोअर एंड पे भी हो सकता है, स्टोमक में भी हो सकता है, और डुडेनम जो छोटी आंत का पहला पोर्शन है हम्म। वहां से भी वो छेद हो सकता है। ओके, और छेद होके वो अब्डोमेन का जो इस अपना स्टोमक का सारा कंटेंट अब्डोमिनल कैविटी में भर जाता है। हम्म। तो वो कंडीशन फिर बहुत सीरियस हो जाती है, दैट इज कॉल्ड परफोरेशन पेरिटोनाइटिस। फिर उस कंडीशन में पूरा पेट खोल के पेशेंट का सर्जरी करना या लेप्रोस्कोपिक से उसको रिपेयर करना, ऑल दीज आर कॉम्प्लिकेशंस। सो ये सब एसिडिटी और हाइपर एसिड जो बन रहा है उसी का खेल है कॉमनली। ओके। ओके, तो दिस इज अपर जीआई प्रॉब्लम। मोस्ट कॉमन इज एसिडिटी, दैट इज कॉल्ड गेस्टाइटिस एंड गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, जीआरडी। ओके, तो ये एक कॉमन सी चीज है, बहुत हर घर में हर आदमी को लगभग मिलता है, बहुत एसिडिटी हो रहा है। करेक्ट। नाउ नाउ कम टू ऑन द कि गैस बन रहा है, हाँ जी। गैस बन रहा है, पेट में गुड़गुड़ हो रहा है, फ्लचुलेंस हो रहा है। हाँ। अब इसके रीजन जो है बहुत है, कि जैसे कि ज्यादा एसिड बन रहा है, ये भी रीजन हो सकता है, या उसका खाना कैसा है, डाइट कैसी है। तो हम्म। पेशेंट बहुत ही स्पाइसी खा रहा है, हम्म। बहुत प्रोसेस फूड खा रहा है, बहुत ज्यादा नॉन वेज वाली चीजें खा रहा है, बहुत ही ज्यादा ऑयली चीजें खा रहा है। तो उस कंडीशन में जो हमारे एंजाइम से जो खाना पचाते हैं हम्म। वो उसके साथ कॉम्प्लाई नहीं कर पाते हैं। अच्छा। और जब खाना पचेगा नहीं प्रॉपर तरीके से, तो उसमें जो गैस बनने वाली प्रोसीजर है, हम्म। इंडाइजेशन वाली प्रोसीजर है, वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, एक्सीड कर जाता है एक लिमिट से। हम्म। तो उस कंडीशन में पेशेंट को फील होता है कि मुझे थोड़ा थोड़ा दर्द हो रहा है, पेट फूल रहा है, पेट में गुड़गुड़ हो रहा है और गैस ज्यादा बन रहा है। तो ये पूरा अपना मेनली जो डिपेंड करता है पेशेंट के डाइट पे डिपेंड करता है। ओके। ओके, डाइट और पेशेंट का फिजिकल एक्टिविटी कैसी है। पेशेंट एकदम बिल्कुल लेजी, सारे दिन पड़े हुए हैं और खाना खा रहे हैं, पी रहे हैं,
तो दिस लेजी कंडीशन जो है पेशेंट की, एकदम से बिल्कुल और मिनिमल और लेस फिजिकल एक्टिविटी, तो उस सिचुएशन में ये चीजें ज्यादा होती है। ओके डॉक्टर, ट्रीटमेंट कैसे हो अगर ऐसी समस्याएं हमको आती हैं? तो यूजुअली क्योंकि इतनी कॉमन प्रॉब्लम है तो हाँ फर्स्ट एड तो आप अपने घर पे देखना चाहेंगे, या ट्रीटमेंट किस तो ट्रीटमेंट में सबसे पहले तो मैडम प्रिवेंटिव मेजर्स, वी हैव टू टेक द प्रिवेंटिव मेजर्स। ओके, वी हैव टू टेक द ऑल द प्रिवेंटिव मेजर्स, लाइक वी हैव टू अवॉइड ऑल द एसिडिक फूड्स। एसिडिक फूड में सारा स्पाइसी खाना आ गया, नॉन वेज वगैरह आता है, अपने कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह आती है। ओके, और स्पाइसी और बहुत ठंडा खाना 2 दिन से फ्रिज में रखा हुआ निकाल के खा लिया, 5 दिन से रखा हुआ खा लिया, ये सारी चीजें जो हमको अवॉइड करना पड़ेगा। We have to take more and more water. We have to take more vegetables. More fruits, more fruit juices. We have to take more fiber diet. You know, fiber diet में सारा अपने सारी vegetables आ गई, ककड़ी, खीरा, टमाटर, all the things. तो ये सारी फाइबर डाइट्स जो है, ये थोड़ा सा एसिडिक के साथ जाके उसको न्यूट्रलाइज करने का कोशिश करते हैं। और पेट का जो टेम्परामेंट है उसको होमियोस्टेसिस बोलते हैं, जो उसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करती है, उसको मेंटेन करने की कोशिश करती है। तो पहले तो हमको वो सारी चीजें अवॉइड करनी है जिसकी वजह से हमको दिक्कतें हो रही है। अगर फिर भी डायग्नोसिस होता है कि आपको एसिडिटी है, तो फिर उसके लिए मैडम मेडिकल ट्रीटमेंट है। ऑलवेज वी हैव टू डू मेडिकल ट्रीटमेंट, या उसको मेडिसिन लेना है प्रॉपर तरीके से, जो उसका सर्जन, फिजिशियन या जो भी डॉक्टर उसको एडवाइस करे, वो पूरी चीजें प्रोटोकॉल से फॉलो करें और प्रॉपर तरीके से पूरा ट्रीटमेंट 15 डेज का है, 20 डेज का है, 1 महीने का है, पूरा कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट उसको कंप्लीट करना है। ये सारी चीजें क्यूरेबल है, ऐसा नहीं है कि इनका क्योर नहीं है, क्यूरेबल है, बट वी हैव टू टेक द प्रिकॉशंस। तो डॉक्टर, तो उस परिस्थिति तक आने में कितना टाइम लग सकता है जहाँ पे अल्सर्स डेवलप हो जाए या फिर वो अल्सर परफोरेट हो जाए? हाँ, या वो कंडीशन में 1-2 महीने का टाइम लगता है। हाँ, हम देखते हैं जनरली, एंडोस्कोपी करता हूँ मैं, तो जो अल्कोहलिक पेशेंट्स हैं या बहुत स्मोकिंग करते हैं या जर्दा गुटखा खाते हैं, तंबाकू, टोबैको, चेविंग वगैरह, उन पेशेंट्स में दे हैव द हैबिट्स, वो 6-6 महीने से खा रहे हैं, 6-6 महीने से उनको दिक्कत हो रहा है, और देखते हैं तो पता कि बहुत सारे अल्सर्स डेवलप हो गए। तो ये पेशेंट पे डिपेंड करता है कि उसको अल्सर डेवलप होने में 2 महीना लगा, 3 महीना लगा, या महीने भर में डेवलप हो गया, या 6 महीने में डेवलप हो गया। हाँ जी डॉक्टर, तो मतलब सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज फिर यहाँ पे यही रही कि हमें एक्सरसाइज करके रखनी है और हमें इंश्योर करना है कि हमारी डाइट कंट्रोल्ड रहे, हम अपने गट हेल्थ को कैसे मेंटेन करके रखें। या हेल्दी डाइट, वी हैव हेल्दी फूड। हाँ जी बिल्कुल। तो आपने फाइबर्स की बात करी अपनी डाइट में इंट्रोड्यूस करने की, आप कोई सजेशन अगर सलाह देना चाहे कि इस चीज को अपनी डाइट में इंक्लूड करना ही है, और क्या एक हेल्दी ईटिंग साइकिल रखनी है ताकि हम अपने गट हेल्थ को इंश्योर कर सके? या मैडम, दैट इज प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स, पानी खूब पीना आपको, फ्लूइड्स, ठीक है। हाँ, या और दूसरी चीज कि वेजिटेबल्स अपने खाने में ज्यादा से ज्यादा हो। ककड़ी हुआ, खीरा हुआ, सारी वेजिटेबल्स हुई, और मतलब सारा बैलेंस डाइट अगर रहता है तो दैट इज गुड। ऐसा नहीं कि नॉनवेज नहीं खाने वालों को नहीं होता है या खाने वाले को होता है, बट थोड़ा सा कम हो। वेजिटेबल्स जितना अच्छा रहेगा, अपना गट हेल्थ उतना अच्छा रहेगा। जैसे दही है, दही बहुत अच्छा होता है, दही में प्रोबायोटिक बैक्टीरियाज होते हैं, लैक्टोबैसिलाई उसमें होते हैं, तो दैट लैक्टोबैसिलाई इज वेरी गुड फॉर आवर गट हेल्थ। लैक्टोज इंटॉलरेंस का इसमें कितना रोल रहता है? क्योंकि ज्यादातर अडल्टहुड में एंटर करते करते लोग दूध के इंटॉलरेंट या डेयरी प्रोडक्ट्स के इंटॉलरेंट हो जाते हैं। यस मैडम, वो इंडिविजुअल डिफर करता है। अगर आपको लैक्टोज इंटॉलरेंस है तो वी हैव टू अवॉइड ऑल द लैक्टोज प्रोडक्ट, जिसमें भी होता है दूध, दही, या जो भी आइसक्रीम्स वगैरह हम इसके प्रोडक्ट्स खा रहे हैं, वो हमको अवॉइड करना पड़ता है फिर उस कंडीशन में, क्योंकि इंटॉलरेंस आपकी बॉडी पे डिपेंड करता है। वो एक्सटर्नल फैक्टर है तो दूध है, लेकिन जो रीजन है वो आपके गट के खुद के रीजन्स हैं कि इंटॉलरेंट क्यों हो गया है। तो उसके लिए तो आपको प्रिवेंटिव मेजर्स बहुत ज्यादा लेने पड़ते हैं, और बहुत ही खास से उसका ऐसा ट्रीटमेंट नहीं है कि इंटॉलरेंस से बचा जा सके। कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स देखिए, हम कुछ हद तक उसको कुछ कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन फिर भी नहीं, उसको आपको बचना है, उस चीज से आपको अवॉइड करना है। That was an excellent session. In conclusion, I would just like to say one thing. While I was reading about you, हमें पता चला that you have been facilitated with the award of excellence by the Health Minister of Rajasthan. So firstly, we would like to extend our congratulations to you. Thank you. हमें ये भी पता चला that you are a world record holder. So can you please elaborate on that?
Yeah, madam. Actually, last year I had operated a patient. Yeah, young female of around 33 years old female. Okay. Weight of the patient was 30 kg at that time. Okay. Patient presented me with abdominal pain with large swelling mid abdomen and right side of the abdomen. We investigated the patient, CT and MRI and all the things. Then we find that there are a lot of cysts in the liver of that patient. Okay, that is called a hydrated cyst. Okay, so I operated that patient I tried laparoscopy initially, but actually patient is very lean and thin, a very complicated disease. Then I turned the patient in the open surgery. My procedure turned in the open surgery and removed more than 300 cysts from the right lobe of the liver. Of that patient. Yeah. So far that's why this is a world record. Still nobody has removed such type of the cyst from the liver. पर उनकी पेशेंट की इतनी रीजन क्या रहा उनका इतना? ये मैडम दिस इज जूनोटिक डिजीज. ये जानवरों की बीमारी है. जानवरों में चलती है तो वी आर इंटरमीडिएट होस्ट. वी आर जस्ट लाइक द एक्सीडेंटल होस्ट. तो जानवरों की बीमारी खाने पीने से हमारे पेट में चली जाती है, फिर वहां से लिवर में, लंग में, ब्रेन में, हार्ट में जाके वो सिस्ट डेवलप होना शुरू हो जाती है. तो उस पेशेंट को इतनी सारी सिस्ट डेवलप होने में बहुत ओवर द इयर्स, ऐसा नहीं कि साल 2 साल का काम है वो. उसको हो सकता है कि 10-5 साल से वो बीमारी हो, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते उसका पूरा लीवर का राइट लोब दैट इज कन्वर्टेड इनटू अ सिस्ट. और पूरे लोब में से करीबन मोर देन 300 सिस्ट मैंने वहां से रिमूव किया. पेशेंट वाज डिस्चार्ज 5th पोस्ट ऑफ डे. नाउ शी इज फाइन, शी इज डूइंग वेल ऑल. या नाउ हाँ, उसका अभी वेट भी बढ़ गया है, अराउंड 40+ उसका वेट हो गया है. अच्छा. या That's amazing, doctor. In conclusion, I would like to thank Dr. Berwa for giving us his important time and allowing us all to gain knowledge from his experience and wisdom. That is all for today's session. Thank you for making time out of your busy schedule from joining us, and thanks to the audience for participating and listening. Thank you. Okay, thank you. Thank you, Shani. Welcome.